Dear friends, thank you all for joining today for this very special webinar organized by Dr. Parthiv Mehta. He's a senior consultant and pulmonologist, intensivist at Mehta Hospital, Ahmedabad. He is also the honorary consultant to His Excellency, the Governor of Gujarat. He is also the senior pulmonologist and for intensive care at UN Mehta Institute of Cardiology in Ahmedabad. He's also medical director in Central National Hospital, Odav, and medical director in Mission Life India. I would also like to welcome Dr. Darshana Thakkar. She is a senior gynecologist, a trustee at Sparsh Foundation. She's also a healer, trainer, orator, and a writer. Thank you, Dr. Saab, both the Dr. Saabs, for giving us your time, for giving this special session for all the Sanghi Cement Group, our employees. Incidentally, our CMD sir has also joined Sri Ravi Sanghi to hear your talk. We are very privileged that you can give us time to speak to all of us. I would also like to mention to everybody that Dr. Saab is a very prolific and now a Facebook personality. He has over 1 lakh of views on almost 105 videos of his on Facebook. So I would encourage all of you to go see his videos. Some of them are very interesting based on wherever you are in your journey. Over to you, Dr. Saab, and thank you so much once again. Dr. Darshana Thakkar is the person who has made it possible for two of us to take this journey of COVID times ke awareness programs. We started off on the lockdown day, first lockdown day of 22nd of March, and then till now, today it was 102nd episode. We have been covering up all the information which is scientific information on COVID care, busting some myths, and trying to help out with whatever information we can share with others, so that number one, the information is correct. Number two, we try to reduce possible errors which makes them to come across COVID. And in case by any chance, if they acquire COVID, then also it would be an information which will reduce their anxiety, their fear, and the outcomes would be always much better. शुरू करते हैं हम हमारी कोरोना जर्नी आज आपके साथ। आइडिया पहले ये रहेगा कि हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे जो कि माहिती ऐसी है, इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिससे हमें पता चले कि ये सही में ये कोरोना क्या है, कैसे आता है और क्या करता है। अगर हमें वो पता चल जाता है तो उसको डील कैसे करना है वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब इतनी बड़ी अच्छी कंपनी में काम करते हो, इतने वेल ट्रेन्ड पीपल हो, तो आपके लिए तो ये बहुत सही और सिंपल हो जाएगा कि आप इस जर्नी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये जो हम बात करेंगे वो काफी सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, बिकॉज वी आर नाउ ऑलमोस्ट 6 महीने के ऊपर हो गया है हमारा कोरोना के साथ संपर्क, और गूगल यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी रखी होगी। तो हम जो कहना चाहेंगे वो वही रहेगा कि ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपकी जर्नी अगर कोई कोविड के साथ लेनी पड़ी तो भी आप सही कर पाएंगे। I'll pass on first to Darshana Ben to just set the ball rolling, and then I'll take it further. Yeah. So when we talk of Corona and COVID-19, let's go back to year 2019. 2019 के दिसंबर से लेके मार्च तक हम न्यूज़पेपर में देखते थे, इंटरनेट पे देखते थे, तब सी फॉर कोरोना जितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। फिर हम एक व्हाट्सएप वाले मोड पे थे कि इस देश की फ्लाइट से इधर आया, वो हुआ, ये लेके आया, इस फ्लाइट से लेके आया, एंड वी स्टार्टेड इनटू द ब्लेम गेम। उसके बाद ये शुरू हुआ कि ये वायरस नया है, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी तकलीफें, उसकी सब कुछ चीजें। सो जब हम व्हाट्सएप वाले वो जुगाड़ में थे ना फॉरवर्ड, तब हम इतना उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। हमने सीरियसली तब लेना चालू किया जब एकदम से लेके दिल्ली, गुजरात, कोई भी स्टेट में बहुत सारे केस दिखने लगे, और फियर फैक्टर जो आया ना, उसके साथ जनता कर्फ्यू आया। जर्नी वहां से शुरू हुई। उस दिन डॉक्टर पार्थिव मेहता थॉट कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डिजास्टरस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, जो काफी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बता दिया था पहले से कि ये दुनिया भर में फैल सकता है। तो उसको कैसे रोका जाए, और अगर हो गया तो उसको फियरलेसली कैसे हम करेजियसली डील करें उसके साथ। उसके लिए गैर मान्यता दूर करवा माटे साची वैज्ञानिक समझणने सरल भाषाમાં આપવા માટે
એમણે જે વિચાર શરૂ કરેલો એનો આજે અમે 102 નંબરનો એપિસોડ કર્યો. So while we use social media for social awareness at zero cost on non-commercial grounds, we learned a lot from millions of people based on their comments, and we started knowing their worries, fear, etc. Dr. Parthiv Mehta is a senior pulmonologist in the city of Ahmedabad who has dealt with thousands of patients treating home. ऐसा मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि हर किसी को कोरोना हो गया, वो हॉस्पिटल में जाएगा, मर जाएगा, वेंटिलेटर पे गया तो वापस नहीं आएगा, ऐसी बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे. 20 मार्च से हमारी जर्नी शुरू हुई. आप लोगों तक जो फेस शील्ड, फेस मास्क पहुंचा होगा, उसको लेके आज भी मिथ है. So let me tell you, the digital detox is important. ब्रेकिंग न्यूज को देखना बंद कर दो, कहीं कान पे भी मास्क लगा दो कि ये इंफॉर्मेशन काम की नहीं है. I'll pose the first question to Dr. Parthiv Mehta कि 6 महीने बाद कोविड, जो पहले दिन था ऐसा ही होगा कि उसने अपना व्यवहार, स्वभाव बदल दिया होगा, और आज के दिन में हमें कौन सा मास्क कब, क्यों, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है. आई एम श्योर अ कंपनी लाइक सांगी सीमेंट, सादी नहीं सांगी चाहिए, that bond and strength that you guys are talking even on your marketing campaign, तो आप प्रोटेक्शन के बारे में भी हर कोई प्रोटोकॉल 100% जब कर रहे हो, पर सांगी के कैंपस से बाहर जाके उसको इतना अच्छे से घर पे कैसे लेके जाना है, समाज में आपकी क्या भूमिका है मास्क, शील्ड और प्रोटेक्शन को लेके. ओवर टू डॉक्टर पार्थिव मेहता. थैंक यू दर्शना बेन फॉर सेटिंग द बॉल रोलिंग. आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि मार्च में जो शुरू हुआ और अब जो 6 महीने हो चुके हैं, तो वो कोविड में, कोरोना में क्या फर्क है. मार्च में जब शुरू हुआ तब हमारा फर्स्ट एनकाउंटर था ह्यूमन बीइंग का, या तो मनुष्य जाति का, इस वायरस के साथ. इंडिया की बात करें, वैसे तो हो चुका था 2019 में, जैसे आपने बताया, इसलिए उसको कोविड-19 कहा जाता है. तो ये जो है, जब वायरस शुरुआत में आया था तब वो बहुत विरुलेंट था, बहुत एग्रेसिव था, और जिस शरीर में घुसा उसमें से काफी लोगों को वो खा जा रहा था, उसको मार डालता था. अभी वो थोड़ा स्मार्ट हो चुका है. उसको ऐसा पता चला कि ह्यूमन बीइंग तो मेरी खुराक है, अगर मैंने पूरी खुराक को साफ कर दूंगा तो इस पृथ्वी पर मुझे जो रहना है, उसके लिए मुझे जो कोई भी व्हीकल चाहिए जिसके ऊपर रह के मैं 2 से 4, 4 से 8 मेरी जर्नी आगे कर सकूंगा, वो नहीं कर पाऊंगा. इसलिए अभी उसकी तीव्रता कम हो चुकी है. तीव्रता कम होने से क्या होता है कि जब कोरोना हमारे नाक से या तो मुंह से, कहीं को आंख में भी आता है, हम आंख में जब लगाते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस है, हमारे हाथों के ऊपर से शरीर में एंटर होता है. अगर मेरे सामने कोई बैठा है, उसको कोरोना है और उसने छींक करी या खांसी करी, तो उसके ड्रॉपलेट से भी मेरे पास आ सकता है. जब वो एंटर होता है, नाक, कान और गला उसको पहले घर बनाता है. पहले 24-48 घंटे वहां बैठ के उसकी फुटहोल्ड ले लेता है. जब वो फुटहोल्ड लेता है तो कईयों को नाक में सर्दी लगती है, कभी कोई गले में दर्द लगता है, जबान पे टेस्ट नहीं लगता है, नाक में से सुगंध नहीं आती है. ये शुरू होते हैं. अभी ऐसा पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको ये स्मेल जाती है, टेस्ट जाती है, उनमें बाय डिफॉल्ट कोविड डायग्नोसिस मिलता ही है. कॉमन कोल्ड, सादी सर्दी, सादा जुकाम, सादी खांसी, जो हर साल हमको होती थी, हर सर्दी के दिनों में होती थी, हर बारिश के दिनों में होती थी, वो सर्दी खांसी जुकाम से इसका यह पहला डिफरेंशिएशन है. 24-48 घंटे रह गया, फिर वो नीचे उतरना शुरू करता है, हमारी श्वसन नली से लेके फेफड़ों में जाता है. અને ફેફડામાં જ્યારે ફેફસામાં અંદર જાય, એટલે આપણા ફેફસા છે ને, आपके घर के सामने कोई ट्री है, अगर वो ट्री को आप उल्टा कर दो और ट्री का जो मेन ट्रंक है उसको खाली कर दो, उसकी हर एक डालियां हैं उसको अंदर से खाली कर दो, होलो कर दो, तो वो सब हमारी श्वसन नलियां हैं. और जितने पत्ते हैं उतनी वायु कोशिकाएं हैं. 30 करोड़ वायु कोशिका हमारे फेफड़े में होती है. वो वायु कोशिका छोटी छोटी नली से जुड़ती हुई बड़ी नली होके अपने मेन श्वसन मार्ग तक आती है, जो वहां पे आके ये वायरस जो गले से होके, स्वर पेटी से होके अंदर घुसता है, फिर अंदर तक चला जाता है, सीधा सीधा नीचे उतर के हमारे फेफड़े के पिछवाड़े के भाग और नीचे के भाग में रहता है. इससे क्या होता है कि वो वहां पे जाके घर बना लेता है. दिस इज द सेफेस्ट स्पॉट. मनुष्य होने के बाद हम पहले बंदर थे, 4 पैरों पे चलते थे. गाय, भेड़, बकरियां हैं, वो भी 4 पैरों पे चलती हैं. उनके फेफड़े हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो हवा का आना और बाहर जाना एकदम सरल होता है. आगे वाले 2 पैर नीचे कर लिए, हवा के साथ आई हुई अशुद्धि, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, चिकनाई, गंदगी सब बाहर आ जाएगी. अभी हम मनुष्य हो चुके और गलती हम तो करते ही नहीं है, गलती करता है भगवान.
तो भगवान ने हमारे नाक से आने का हवा का जो मार्ग यहाँ की बजाय अगर नीचे कर दिया होता, नेवल के ऊपर, तो नीचे से हवा ऊपर आती और हवा नीचे से निकलती। नीचे से निकलने के टाइम आई हुई सब अशुद्धि हवा, गंदगी, जो कुछ भी है, चिकनाई, आपके वहां फैक्ट्री में होती हुई सीमेंट, धूल, जो कुछ भी, वो बाहर निकल जाती। तो वो फेफड़े में सेडिमेंट नहीं हो पाती, फेफड़े को जमाती नहीं। और अगर वो नहीं होता तो मेरी ब्रांच पल्मोनोलॉजी होती नहीं, तो मेरा घर चलता नहीं। तो भगवान ने जो हमें ये बनाया है उसका काम मुझे मिल गया है। तो बताने की बात ये इसलिए जरूरी है कि जब भी कोरोना, सिर्फ कोरोना नहीं, कोई भी वायरस हमारे फेफड़े में आता है, वो सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, स्वाइन फ्लू वायरस हो सकता है, इवन सिंपल बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया। जनरली बैक्टीरियल न्यूमोनिया सॉलिड होते हैं, वो जमे हुए होते हैं। और ये वायरस जो है वो हमारी नेचुरल बाउंड्रीज को तोड़ते हुए चला जाता है। कई हिंदी पिक्चर में देखा होता है कि कोई आत्मा होती है, वो दीवार से निकल के दूसरी बार पहुंच जाती है दूसरी साइड पे। अंग्रेजी मूवी में भी ऐसा देखा गया। ये वायरस उसी आत्मा की तरह है, नेचुरल बाउंड्री को तोड़ते हुए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सेगमेंट में चला जाता है। जो कि अगर वायरस फेफड़े में अंदर उतरा तो वहां गई हुई वायरस की सिग्नल्स क्या होगी। चाय बनाने की छलनी है, समझ लो कि 30 करोड़ होल वाली चाय बनाने की छलनी है, तो उसमें मलाई चाय का भूखा रह गया तो हम क्या करेंगे, उसको छिटकारेंगे, ठपाक ठपाक ठपाक। उसी तरह से भगवान ने श्वसन मार्ग में गई हुई कोई भी अशुद्धि, जीवित या मृत, माने डस्ट है, केमिकल है, वायरस है, बैक्टीरिया, फंगस, उसको निकालने के लिए, छिटकारने के लिए खांसी की क्रिया बनाई है। तो अगर वायरस अंदर फेफड़े में गया, मुझे खांसी आनी है, खांसी आनी शुरू हो गई, वायरस वहां पे है तो सूजन होता है, सूजन माने स्वेलिंग, स्वेलिंग होता है तो बुखार आती है, तो बुखार आना, खांसी होना और स्वेलिंग की वजह से अंदर दर्द होना, ये सब कोई भी वायरल इंफेक्शन का काम हो सकता है। क्योंकि अभी कोविड का एरा है, क्योंकि अगर मेरे नाक में सूंघना बंद हो गया, जबान में स्वाद आना बंद हो गया, या तो मैं कोई कोविड के संसर्ग में आ गया और ये सब शुरू हुआ 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, तो उसका कोविड होने की संभावनाएं ज्यादा। आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर मेहता क्वेश्चन हियर। आप लोग सब सीमेंट से काम कर रहे हो, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड वैसे भी आपके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंड पार्थिव आई कीप गिविंग अ सिमिली। कोरोना जब हमारे फेफड़े में चला जाता है, पहुंच जाता है, एंड इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग। આપણા ઘરમાં બટાકાનું શાક બનાવી અને ડાઇનિંગ ટેબલ પર રહી જાય 6 દિવસ, 8 દિવસ, 10 દિવસ, તો શું થાય? તો એ જે વાટકીમાં હોય ને ત્યાંથી ફૂગ વધવા માંડે ને પછી સુગંધની દુર્ગંધ થવા માંડે, આવું બધું થતું હોય। તો જ્યારે આ કોરોના વાયરસ એ ફેફસામાં પહોંચી જાય છે ને, તો બ્લેક ફોરેસ્ટ પેસ્ટ્રીને યાદ કરો, गुजराती लोग ढोकला खमण ने याद करो, द स्पंजी स्ट्रक्चर ऑफ दैट रेसिपी, जिसको हम दबाते हैं तो एग्जैक्टली स्पंज लाइक है। अपनी कुर्सी के नीचे तकिया है, गाड़ी का सीट है, उसको याद करो। फेफड़े जो है, इट्स लाइक अ वेरी वेरी सॉफ्ट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को ये वायरस क्या करता है वो आप लोग से ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा जी। ओवर बात भाई, अगर ये डनलोप का कोई तकिया है और भगवान करे मेरे घर पे सीमेंट का काम चल रहा है, उसने एक बकेट में सीमेंट घोल के रखी है और वो डनलोप का तकिया अंदर गिर गया, अगर वो अंदर गिर गया और मेरा ध्यान तुरंत गया तो मैं क्या करूंगा, उसको उठा के पानी में डाल दूंगा, सादे पानी में, पानी की नली डाल दूंगा या तो पानी की बकेट में डाल दूंगा, जितनी सीमेंट बारी बारी करके मैं उसको साफ कर दूंगा। बाद में वो सूख जाएगा पानी, तो वो सीमेंट जमेगी नहीं, मेरा तकिया सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगा। इस वायरस की यही एक सबसे बड़ी पिक्यूलरिटी है जो और वायरसेस की तुलना में अलग है। अगर स्वाइन फ्लू का वायरस है या कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो मिट्टी की तरह है, अगर 10-15 दिन के बाद भी अगर मेरा ध्यान गया तो उसमें पानी में डालता रहूंगा तो धीरे धीरे मिट्टी साफ होती जाएगी। लेकिन ये सीमेंट की तरह है, 8 से 10 दिन के अंदर ही रिलेटिवली, वो सीमेंट का, आपकी सांगी सीमेंट तो तुरंत जम जाती है, लेकिन ये जो वायरस है वो सीमेंट की तरह काम करता है, तो 8 से 10 दिन के अंदर ही वो सीमेंट की तरह जम जाता है। वो सीमेंटिंग होने की वजह से उतनी फेफड़े की कोशिकाएं काम करना बंद करती है। अब ये 30 करोड़ कोशिकाएं, जब मैं सांस लेता हूं और सांस बाहर निकालता हूं, 600 से 750 ग्राम जो हम हवा लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। इस 30 करोड़ कोशिकाओं को मैं प्रेस करके, चप्पट बना के साइड बाय साइड अगर उसको रखता हूं तो एक टेनिस कोर्ट जितना उसका सरफेस एरिया होता है, और उसकी वजह से ही एक सांस लेने से, उच्छ्वास करने में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। उस ऑक्सीजन को लेके खून की नलियां,
अगर ये मेरा वायु कोश है तो उसको चारों ओर खून की नलियां हैं जो कि बाल से भी बारीक है। वो खून की नलियां वो ऑक्सीजन को लेकर हृदय को देती है, हृदय उसको पूरे शरीर में घुमाता है, हर एक अंग को ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। हर एक सांस लेने पे हृदय 4 बार धड़कता है, उसको 4 बार धड़कना होता है। वो 4 बार धड़कने से वो आया हुआ ऑक्सीजन वाला खून आगे बढ़ता है। अभी आप सोचो कि इतना सा छोटा सा हार्ट 1 मिनट में पूरे 5 लीटर खून को शरीर में घुमा देता है। 70 ml with every beat, 72 times in a minute, 5 liters, that is the volume of our blood. हमारे शरीर में 5 लीटर खून है, वो 1 मिनट में घूम जाता है 5 लीटर, तो 1 घंटे में 300 लीटर, तो 24 घंटे में 7200 लीटर। And this is all free of cost. Free of cost, at no cost, without any pain. मोटर गर्म नहीं होती है, उसको ऑयलिंग नहीं डालना होता है। हाँ, अगर मेरा वजन जरूरत से ज्यादा है तो उसको ज्यादा लोड पड़ता है, वो प्रेशर बढ़ाता है। अगर मैं ज्यादा गुस्सा करता हूं तो धड़कन बढ़ जाती है, तो वो परेशानी दे सकता है। अगर मुझे कोई और बीमारी है तो उसके ऊपर इफेक्ट और इम्पैक्ट आता है। कमिंग बैक टू कोरोना एंड लंग्स, And at this point of time, I'll interrupt for the reason, salute to Aditya Sanghi and Ravi Sanghi for this, because we have 100 participants and your family has gone to the century time. Great. I wish कि ये 100 लोग जो आज जुड़े हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ दे रहे हैं, જો આ 100 લોકો પોતાની આસપાસના બીજા 5 લોકોને આ માહિતી વહેંચે તો 500 લોકો અને એ ફેમિલીમાં 4 જણા હોય તો 2000 લોકો સુધી આજે સાંજ સુધીમાં આ સાંઘી પરિવારે લીધેલા ઇનિશિયેટિવથી એટલા લોકોની સ્વસ્થતા માટે વધારે કામ થશે. સો સેલ્યુટ ટુ યુ ફોર ધીસ વન્ડરફુલ ઓપોર્ચ્યુનિટી. જ્યારે રવિવારે બપોરે ઊંઘવાનો સમય હોય, ઓફ ડ્યુટી હોય, એ લોકોને આમ ઓન ડ્યુટી થવું પડ્યું હશે. जी, सो कमिंग बैक अगेन ऑन लंग एंड कोविड, तो ये जो सीमेंट का जमना होता है, वो सीमेंट जमनी शुरू हो जाए उससे पहले हमें अंदर पानी छोड़ना होता है। वो पानी छोड़ने की क्रिया भगवान ने हमारे सबके फेफड़े में दी है। इसको एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म कहते हैं। हमारे फेफड़े की कोशिकाएं जम नहीं जाए इसके लिए अंदर एकदम जैसे मुंह में सलाइवा होती है, ऐसा ही लिक्विड अंदर बनता रहता है। हमारी जो नलियां हैं वो भी खुल के सिकुड़ सकती हैं, ऐसी बनाई हुई होती है, इलास्टिसिटी वाली। इसकी वजह से जब भी ऐसी कोई समस्या आती है, हमारी बॉडी अपने आप उसका जो खुद का एक एक्शन लेना है वो शुरू कर देता है। लेकिन ये वायरस इतना नोटोरियस है कि इस एक्शन को वो कुछ भी मायने उसके लिए नहीं रखता है। वो कहता है कि नहीं, हमें तो और कुछ खिलाओ। हम हरदम कहते हैं कि ये जो वायरसेस है, ये जो बैक्टीरिया है, जो कोई इन्फेक्शन है, ये कोई भी रोग है, वो मेहमान की तरह होते हैं। उनको उनका जरूरी खुराक दे दो, उनका जरूरी खिलाओ पिलाओ, तो वो कुछ नहीं करते हैं। अगर हम उसके सामने छेड़खानी करते हैं, उसके सामने हम लड़ने जाते हैं, गलत सलत चीजें करते हैं, तो वो नुकसानी शुरू करता है। इस वायरस या तो कोई भी वायरस शरीर में आता है, सबसे पहले हमारी इम्यून सिस्टम और दूसरी हमारी एक्टिविटी। सोच लो कि ये मेरे पास मोबाइल फोन है और उसमें उसका जो लाइट है वो चालू हो गया, तो जितना जल्दी मैं उसको बंद कर दूंगा उतनी मेरी बैटरी ड्रेन आउट हो जानी कम हो जाएगी। अगर ये लाइट टाइमर वाला है, 7 से 10 या 15 दिन में ही बंद होने वाला है, तो उस कंडीशन में मेरी बाकी की सब जो अंदर एप्लीकेशन चालू है, अगर उसको मैं बंद कर दूंगा तो मेरी बैटरी ड्रेन आउट नहीं हो जाएगी। अगर मेरी बैटरी ड्रेन आउट हो गई तो मेरा काम खत्म। सो द क्वेश्चन इज कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, खाली रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, आप होम क्वारंटाइन हो, तो बैटरी की पीछे चलती है बंद करना है। सो टिप्स फॉर होम क्वारंटाइन क्या करना है सुबह से शाम में? जैसे एक कहानी है पंचतंत्र की कि 2 दोस्त जा रहे थे जंगल में, सामने से भालू आ गया। तो एक जो एकदम चुस्त दुरुस्त था, एथलीट था, वो बोला मैं तो भाग जाऊंगा क्योंकि आई हैव टू रन फास्टर देन माय अदर पर्सन। अगर मैं जल्दी गया तो भालू उसको खा जाएगा, माने वो दौड़ गया। दूसरा वाला जो मेरे जैसा था, जो दौड़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने कहीं पे कहानी में पढ़ा था कि भालू के सामने अगर आप कोई मुर्गा पड़ा है तो भालू नहीं खाता है। तो वो इंटेलिजेंट था, तो उसने वो सो गया और सांस रोक ली। जैसे सांस रोक ली, भालू उसको सूंघ के चला गया। ये कोविड भी वो भालू जैसा है। अगर मेरे शरीर में आ गया, मैं मास्टरली इनएक्टिव हो गया, मैंने कोई काम नहीं करना है, मैं पूरा एकदम लेजी बम की तरह पड़ा रहता हूं, तो मुझे कुछ नहीं करेगा। अगर मैं मेरी खुद की एक्टिविटीज चालू रखूंगा, मैं दौड़ने रोज जाता हूं, मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं, मैं फिजिकल एक्सरसाइज करता हूं, तो हम ये जितना काम करेगा उतना उसको मजा पड़ेगी। क्योंकि जितना काम हम करते हैं उसके साथ हम कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं
और उस टॉक्सिन्स का उपयोग करके ये कोविड हमारे शरीर को और नुकसान करता है। वो एसिडिक तत्वों की वजह से हमारी कोशिकाएं और नष्ट होती है। तो मास्टरल इनएक्टिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनएक्टिविटी फिजिकल नहीं होनी चाहिए, साथ में यहाँ पे भी होनी चाहिए। हम कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पे डर है, संशय है, शंका है, चिंता है, कुछ भी करेंगे तो केमिकल कुछ बनते हैं, वो भी हमारी बॉडी को कूल डाउन नहीं होने में उसका बड़ा रोल होता है। तो वो अगर कूल डाउन होते हैं, हम अगर एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो कॉमन वायरस जो कि 7 दिन के अंदर सेटल हो जाता है। गुजराती में घणी वखत कहीए शरदी थाय दवा लो तो 7 दिवस ने ना लो तो अठवाडिયું, सारू થઈ જ જાય। પણ જેને અમને ચાંદલો કરવા આવવું હોય એને અમે ના પાડીએ। પણ ये वायरस में अगर कोविड में अगर आया तो वो 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है। उसकी एक्टिविटी माने डुप्लीकेशन 2 में से 4, 4 से 8, 16, 32 होने वाली जो वायरल लोड जो आप रिपोर्ट में देखते हो, क्रिया जो है वो 11वें दिन तक स्लो हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। तो जो वायरल लोड सिटी वैल्यू हम मानते हैं, जो जानते हैं, वो जब नाक और गले में होता है उसमें कितने वायरस का लोड मिला, वो सिटी वैल्यू जितनी कम उतना वायरल लोड ज्यादा होता है। सिंपली हायर वायरल लोड डज नॉट मीन कि आपके ऊपर बड़ा सा हमला है और आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरी अगर इम्यून सिस्टम अच्छी है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, मेरी उम्र 40 से कम है, तो मुझे कुछ नहीं होना है। ये वायरस 100 लोगों को लगता है, उसमें 20 से 25 लोग तो कोई चिन्ह नहीं आता है, कोई सिम्टम्स ही नहीं आते। गुजराती में जेने गांडियू रॉकेट कही, हमणा दिवाળી आवशे, कदाच आ वखते तो આપણે फटाकड़ा नहीं फोड़ीए, पर अहमदाबाद में, गुजरात में भी कहीं पे होता है, वो उसका रॉकेट के ऊपर टॉप नहीं होता है, उसको जला के छोड़ दिया, वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, प्रेडिक्ट कहां जाएगा पता नहीं चलेगा, वो अपने घर में भी आ सकता है, घर में भी आग लगा सकता है। એટલે આવું ગાંડિયું रॉकेट माने जो एसिम्प्टोमेटिक है, वो बाहर से कोरोना को खभे पे कंधे पे बिठा के लेके आएगा और घर में औरों को दे देगा। वो विक्रम वेताल वाली बात ही होती है, वेताल के कंधे पे, विक्रम के कंधे पे वेताल बैठ जाता है, घर में आके औरों को नुकसान देता है। तो इसको ध्यान रखना है। अगर मैं कोरोना संक्रमित एरिया में हूं, मेरे कोई कलीग्स को कोरोना हुआ है, तो मैंने आइसोलेट नहीं हो जाना है, लेकिन मेरी खुद की केयर करनी है। अगर 25% जो लकी है जिनको ये सिम्टम्स नहीं देता है, उसके ऊपर बाकी के जो 40 या 45% ऐसे हैं, माने टोटल के 65-70% तक जिनको कि माइल्ड सिम्टम आ सकते हैं, गला खराब हो सकता है, नाक में से पानी बह सकता है, थोड़ा सा बुखार लग सकता है, थोड़ी सी खांसी होती है, वो धीरे 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 अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छी होने की वजह से वो सेटल डाउन हो जाता है। बाकी के जो है उनको सीवियर डिसीज हो सकता है, कईयों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और 3 से 5% ऐसे हैं जिनको कि आईसीयू में रहना पड़ता है, और आईसीयू में गए हुए में से 25% ऐसे होते हैं खुद की रोग प्रतिकार शक्ति कम है, साथ में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी डिसीज, किडनी खराब होना, ऐसी कोई भी समस्या होने की वजह से कोरोना खुद नहीं, लेकिन ये समस्या को वो और अनस्टेबल करता है, उसकी वजह से आगे जाके जान का जोखिम हो सकता है। ये पूरा स्पेक्ट्रम इसलिए दे रहा हूं कि आप जो जुड़े हैं, आपके फैमिली में, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे हाई रिस्क ग्रुप के एजेस हैं, और इस ग्रुप के एजेस में प्रेग्नेंट वीमेन भी आती हैं, क्योंकि उनके पेट में और दूसरा बच्चा होता है, उनको उसको भी संभालना होता है। तो ये जो हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं, उनके लिए तो अभी भी समझदारी यही है कि लॉकडाउन चालू रखें। जैसे अभी अनलॉक हुआ है, तो हम ऐसा ही कहते हैं कि समझदारों के लिए तो ये लॉकडाउन ही है। अगर इफ इट इज नॉट मैंडेटरी, इफ इट इज नॉट कंपल्सरी, डू नॉट गो इनटू सोशल गैदरिंग्स, डू नॉट गेट इनटू द पब्लिक प्लेसेस, क्योंकि सामने वाला हमारे लिए वो ऑनेस्ट नहीं है। अगर मैं ऑनेस्ट हूं और मुझको सर्दी खांसी हो गई, तो आज के प्रोग्राम में मैं दर्शना जी को बोलता कि मैडम आज मुझे सर्दी है, खांसी है, आई विल नॉट ज्वाइन यू, क्योंकि हमें हमारे काम के टारगेट खत्म करने होते हैं, काफी सारे प्रेशर्स होते हैं। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि हम काम पे जाएंगे, हम काम करेंगे, ये तो छोटी सी कॉमन सर्दी है। आज के एरा में हमें इतनी अलर्टनेस रखनी है कि इफ आई हैव दैट, आई वुड ट्राई टू कीप अवे, ऑनेस्टली सेइंग कि मुझे 2 दिन मैं काम करूंगा या तो घर पे करूंगा, छुट्टी मनाने बाहर जाना है और सर्दी खांसी नहीं करना है। ऊपर वाले के चौपड़े में लिखा जाता है सच गलत, सच गलत, गलत इसके नाम से लिया तो सही में आ जाएगा, तो परेशानी दे देगा। तो आवश्यक ना होय ત્યાં સુધી ઘરમાંથી બહાર નીકળવું નહીં, કામના સ્થળે જે જવું પડે તે ચોક્કસ જવાનું, પણ જરૂરી સાવધાની સાથે જવાનું। ઘરમાં પણ કોઈને સાદો શરદી ખાંસી તાવ હોય તો પેનિક થયા વગર એને ડોક્ટરની સલાહ લઈને યોગ્ય દવાથી મટાડવું પ્રયાસ કરવો। પણ મને તો અઠવાડિયાથી તાવ આવે છે ને હું મેટાસિન લઉં
અને મારી સાથે કામ કરનારા માણસ સાથે ટિફિન જમું અને માસ્ક કાઢ્યા વગર હાથી કરું, that's the breach of trust on the societal ground and that can create chaos. मास्क की बात आई तो अभी मैं ये टॉपिक ले लेता हूं क्योंकि मैडम ने पहला क्वेश्चन वही पूछा था। अगर मैं और आप 6 फीट के अंदर हैं, मैंने मास्क नहीं पहना है, आपने मास्क नहीं पहना है, और मुझे अगर कोविड संक्रमण हुआ है जो मुझे पता है या तो नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, तो विद इन 5 मिनट्स 90% चांसेस है कि मैं आपको कोरोना के वायरस पहुंचाऊंगा। 6 फीट के अंदर अगर आप हैं और मैंने और आपने दोनों ने मास्क नहीं पहना है। अगर मैंने मास्क पहना है और आपने मास्क नहीं पहना है, तो मेरे ओर से आपकी ओर आने वाले वायरस की पॉसिबिलिटी 5% हो जाती है। अगर मैंने मास्क नहीं पहना है और आपने मास्क पहन के रखा है, फिर भी 70% चांसेस है कि वायरस आपकी ओर आएंगे, क्योंकि मैं जो बोलूंगा मास्क में तो रहेगा लेकिन आपके फेस के ऊपर कहीं पे भी वो वायरस आके बैठ सकता है। मेरे उच्छ्वास में, मेरे बोलने में जो ड्रॉपलेट आते हैं, और बीच में मैं खांस लिया, छींक कर लिया, तो हमारी आदत है अनजाने में हम हाथ यहाँ पे लगाते हैं, फिर नाक में उंगली जाती है, मुंह में जाती है, आंख पे जाती है, तो ये अननोन कंटामिनेशन इज वेरी वेरी हैजार्डस। तो हमारा धर्म ये रहेगा कि हमारे सामने वाले ने मास्क पहना है वो हम कंपलसरी देखेंगे, लेकिन हम भी मास्क पहन के रखेंगे। अगर हम दोनों ने मास्क पहना है तो खाली 1.5% 1.5% चांसेस आर देयर कि वी विल बी एबल टू गेट द ट्रांसमिशन, या तो हमें चेप लगेगा। 90% and 1.5%, there is a 60 times risk if both are on mask and when both are not on mask. तो ये सिंपल मास्क, और कोई भी मास्क हो सकता है, कपड़े का मास्क हो गया, सर्जिकल मास्क हो गया, ट्रिपल लेयर मास्क हो गया, N95 हो गया, ऑल दीज आर ओके। अगर हम रीयूजेबिलिटी बात करते हैं तो दीज आर नॉट टू बी यूज्ड रिपीटेडली, एंड ये जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट है, माने बायो हैजार्ड है, उसको डिस्कार्ड करने के भी नियम है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हर डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, हर मेडिकल संस्था को कराना होता है, और वो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्कार्ड की एक प्रॉपर चैनल होती है। और दूसरी मुश्किल ये भी है कि आपने N95 ऐसे इस्तेमाल कर लिया, फिर इसको लेके आप घर में गए, घर के टेबल पे रख दिया, अलमारी पे रख दिया, वहीं पड़ा रहेगा, तो आप जितना घूम के आए हो, वहां से जितना एक्सपोजर लेके आए हो, वो मास्क की बाहरी सरफेस में हो सकता है, जिसको आप संभाल के रखोगे। बोलो ये तो नया मास्क है, महंगा है, 2 घंटा पहना है, कल और 6 घंटा पहन लेंगे, पर आपके घर में आपने उसको 24 घंटा रख लिया। सो इससे अच्छा ही है कि अगर आप 6 फुट से दूर किसी से मिल रहे हैं, कपड़े का वॉशेबल मास्क छींकना नहीं है, धीरे से बोलना है, इतना टिप्स जरूरी है। पार्थिव भाई विशेषज्ञ है, तो मेरे को ये भी पूछना था कि अगर किसी को कोरोना हुआ, एसिम्प्टोमेटिक है, आपने घर पे क्वारंटाइन कर लिया, और किसी को नहीं भी हुआ है और स्वस्थ तो रहना है, तो 2 जरूरी चीजें हैं, इम्यूनिटी और दूसरा लाइफस्टाइल। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, और फिर दूसरी बात ये करेंगे कि दिन के दौरान लाइफस्टाइल में कौन से मॉडिफिकेशन लाने हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय इम्यूनिटी, कोरोना की इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, एंड देन वी विल मूव अहेड। ग्रेट। इम्यूनिटी माने हमारी रोग प्रतिकार शक्ति। एक है शारीरिक इम्यूनिटी और दूसरी यहाँ की इम्यूनिटी। कई लोग यहाँ इम्यून होते हैं, इमोशनल इम्यूनिटी, हाँ वो भी है, और काम के बाबत में कोई इम्यून होते का है, जितना भी बजाओ वो काम नहीं करते, वो तो टॉप ऑफिशियल्स को ज्यादा पता होता है हमारी तुलना में। लेकिन हम फिजिकल इम्यूनिटी की बात करें तो कोई भी रोग हमारे शरीर में आता है तो उसको कंट्रोल करने की हमारी जो एक शक्ति है, ताकत है, और इस ताकत को चाहिए रॉ मटेरियल जो कि प्रोटीन है। वो प्रोटीन में से इम्यूनोग्लोबुलिन माने रोग प्रतिकार द्रव्य बनते हैं, कुछ बने बनाए होते हैं और कुछ नया प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है जैसे जरूरत पड़ती है। तो बने बनाए कब होते हैं, जबकि हमारा उस रोग के साथ पहले कोई एनकाउंटर हुआ है, बराबर। गुजराती में कहूं तो नाना था ने त्यारे पेलू भज्यू भज्यू रमता, 2 हाथ आम राखवाना, आम ऊपर पेलू करे ने પછી સામે વાળો મારે। જ્યારે નાના હોય ત્યારે મોટાની સાથે રમતા હોય તો આપણે ફટાફટ મારે, પછી ખબર પડે કે એ મારે ત્યારે હાથ હટાવી લેવાનો, हाथ आम કરી લેવાનો, देन वी स्टार्ट लर्निंग द ट्रिक्स। उसी तरह से इस वायरस का जैसे हमारे वैक्सीनेशन हो जाता है, छोटे बच्चे हैं तब टीबी का वैक्सीन देते हैं, कोई रूबेला का जैसे मैडम बात करती है लेडीज को दिया जाता है।
जो वैक्सीन देते हैं वो छोटा सा एक एनकाउंटर होता है, कंट्रोल्ड एनकाउंटर, जिसको ध्यान में रख के, याद रख के हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बना के रखती है। जैसे भी वो सही में आएगा तो उसके सामने हमला दाग देंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि कोविड नया है, वो हमला भी नया है, हमको एनकाउंटर सिखाने वाली वैक्सीन तो अभी आई नहीं, आने में भी देर लगेगी। तो हमें पता है कि वो वैक्सीन नहीं है, तो मेरे पास पूर्ता रॉ मटेरियल होना चाहिए। जब भी एनकाउंटर होगा तब मैं ये रोग प्रतिकार द्रव्य बना सकूं, इम्यूनोग्लोबुलिन बना सकूं। उसके लिए चाहिए क्या? तो कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारा रोग प्रतिकारी द्रव्य बना। प्रोटीन हमें मिलता कहां से? एक तो हर प्रकार की दालें, मूंग, मोठ, चना, राजमा, सोयाबीन, उड़द, गुजराती में बात करें तो वाल, चना, वटाणा, तुवेर, રાજમા, બધા જે કોઈ પણ બધી દાળમાંથી બનતી બધી જ વસ્તુઓ ખાઈ શકાય। અંકુરિત બનાવીને ખવાય, ઉબાલ के खा सकते हैं, कच्ची भी खा सकते हैं, सब्जी पका के खा सकते हैं। और उसमें से जो कोई भी घर में बनाने की आपको वानगी जो कहते हैं ना व्यंजन रेसिपीज, गुजराती में सारी રીતે કહી શકું તો ચણા ખવાય, દાળિયા ખવાય, દાળિયાની ચીકી ખવાય, મગના પુડલા, મગનું ખીચું, ચણાના પુડલા, વેડમી, ખાંડવી, પાત્રા, બેસન ગટ્ટાનું શાક, ગાંઠિયાનું શાક, મગની દાળનો શીરો, સુરતી ખમણ, ઢોકળા, બધું જ ખાઈ શકાય। ये सब प्रोटीन है। जितने किलोग्राम वजन है मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ग्राम आइडियली उतना प्रोटीन रोज मिलना चाहिए। एक वो मिलता है दाल में से, दूसरा मिलता है दूध में से, मिल्क में प्रोटीन होता है। तीसरा जो कि नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको अंडे से मिल सकता है, मांस, मटन, मच्छी से मिल सकता है। ये प्रोटीन विल बिकम अवर मेजर सोर्स। और प्रोटीन के साथ हमें चाहिए आयरन। आयरन मिलता है खजूर, अंजीर, गुड़, बाजरा, हरी पत्ती वाली सब्जियां, बीटरूट, कैरेट्स एंड मिल्क। तो अगर मेरी डाइट में ये सब है तो उसका उपयोग करके मैं मेरी इम्यून सिस्टम को चार्ज अप रखूंगा। साथ में चाहिए विटामिन। अभी तो आजकल सब विटामिन, पिछले 6 महीने से विटामिन का इंडिया में जितना नहीं सेल हुआ है सालों में, उतना सदियों का सेल अभी पिछले 6 महीने में सबने खा लिया। सबको पता है कि अभी मेरी इम्यूनिटी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए जो मिलता है सब ABCD जब जितना आता है सब खा लिया। બહુ ગોળીઓ વિટામિન સી ની ના ખાવી હોય ને તો લીંબુ સારામાં સારો વિકલ્પ છે। કેટલા લીંબુ લેવાય બાકી? नींबू तो उसमें जो मात्रा है वो 1 या 2 नींबू से ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन आंवला सबसे बड़ा सोर्स है। आंवले में विटामिन ज्यादा है, लेकिन अब की जो जरूरत है उसके लिए टैबलेट एक ले लिया, अच्छी बात है। फिर जो आता है वो है लिक्विड, पानी। हम जो कुछ भी शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को दहन करके कैलोरी उत्पन्न करते हैं, साथ में कचरा बनता है। उसका एग्जॉस्ट, कार में जैसे हवा निकलती है पीछे से धुआं, भगवान ने हमें आगे एग्जॉस्ट दिया है जो कि यूरिन के माध्यम से हम वो कचरा, यूरिया सब बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए पानी लेना है। तो पानी ले लिया, अच्छा खुराक ले लिया, अच्छा आराम कर लिया, तो उससे हमारी इम्यून सिस्टम फंक्शन बनी रहेगी। फेफड़ा मैंने जैसे बताया कि पीछे और नीचे के भाग में रहता है। अगर मैंने उल्टा सोना शुरू कर दिया तो वो भी बाहर होना शुरू हो जाएगा। साथ में मैंने गहरी सांस लेना शुरू करा, गर्म पानी से धुआं लिया, गर्म पानी की भाप लिया, बफारा लिया, उसको स्टीम इनहेलेशन करते हैं, गर्म पानी से कुल्ला गरारे किया, तो हमारी सिस्टम एकदम सरल रहेगी। तो हम घर पे भी ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि बुखार आ गया, जिनको कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, तो उनको दवाइयां भी देनी पड़ती है। अगर रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, तो उस केस में स्पेसिफिकली एंटीवायरल दवाइयां अभी दी जा रही है। जब तक कि वो नहीं मिली थी तब तक हम एंटीबायोटिक देते थे, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, कई लोग आइवरमेक्टिन देते हैं जो कि वर्म की मारने की दवाइयां हैं, कुछ कई बाकी भी नुस्खे चलते हैं। इन दवाइयों को यूज कब किया जाएगा उसके लिए मेडिकल ग्राउंड्स पे एडवाइजरी भी है, और किस में कितना दिया जाएगा उसकी भी एडवाइजरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर दवाई दी जाए, साथ में आराम करा जाए, हमारे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करा जाए, तो कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं होती है। मुकेश भाई is asking छाछ लेना कितना जरूरी है और is it useful or not? बटर मिल्क is very good. In that case we can very well use it। और बटर मिल्क लेने से फायदा ये होता है कि हमारी जो सिस्टम में पाचक बैक्टीरिया चाहिए वो मिल जाते हैं हमें। છાશમાં છે ને લેક્ટોબેસિલસ આવે અને એ આપણા આંતરડામાં જાય એટલે ઇન્ટેસ્ટિન્સ ની અંદર બેક્ટેરિयल फ्लोरा હોય, जो भी हम खाते हैं उसको पाचन करना है। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ डाइजेशन दैट रिक्वायर्स लैक्टोबैसिलस। तो हम बोलते हैं ना किसी को डायरिया हो गया, दही छाछ दिया करो, हल्का खुराक लेना है, व्हाट इज दैट? तो इंटेस्टिन की अंदर की जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो हमारे लिए खाना हजम करने के लिए, पाचन तंत्र को चलाने के लिए जरूरत है,
वो छाछ में से मिलता है। टिप्स को मैं आगे लेके चलूं तो पानी जो पीना है, कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी अगर आपने दिन में पी लिया तो कोई भी वायरल बीमारी में आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाएगी। खाने में देखा जाए प्रोटीन का, डॉक्टर साहब ने बताया कि हाई प्रोटीन डाइट लेना है, साथ में ध्यान रखना है कि अपना आहार संतुलित हो। संतुलित मानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आयरन, सब चीजें उसके अंदर है। पर अभी तकलीफ क्या हो गई है, एक हफ्ता अगर हर रोज मम्मी ने दाल भात चाक रोटली बनाया तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। सो अपना जो बेसिक स्टेपल फूड था, कल्चरल रेसिपी और वो खाना खाने की थाली बनती थी, उसमें से हम अभी भाकरी से पिज्जा चले गए हैं, सुखड़ी से पेस्ट्री चले गए हैं। उसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा असर हुआ है। सो अगर सुबह उठते गर्म पानी पी लिया, नाश ले लिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ रहेगा। दोज हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, तो आप तो वैसे भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड में शायद ज्यादा जाओगे, जो आपके प्रोजेक्ट पे यानी कैंप साइट पे काम कर रहे हैं या तो प्रोडक्शन यूनिट पे है। दोज हु आर वर्किंग इन द क्लोज चैम्बर्स, एग्जीक्यूटिव्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, जो जिन लोगों को बंद ऑफिस में रहना है, वो अगर आप सोचते हो कि मैं तो बिल्कुल सेफ हूं, मैं बाहर जाता नहीं हूँ, पर आप भले ही बाहर नहीं जाते हो, आपके ऑफिस के अंदर कितने लोग आते हैं, उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं, आप पहन के रखो। एसी का टेम्परेचर हो सके तो 26-28 मेंटेन करो, उसको 16 लेके मत जाओ। हो सके तो सीधा सनलाइट भी अगर ऑफिस में कहीं से आता है तो उसको रोक के मत रखो। ये डेली सिंपल टिप्स टू बिहेव ऑन दी यूनिट। और ऑफिस का मैंने बात किया। खाने के अंदर जो संतुलित आहार चाहिए, उसमें ब्रेकफास्ट में यू कैन टेक स्प्राउट्स। पार्थिव भाई हमेशा जो अभी उन्होंने बताया कि वेट इंटू 1.5 ग्राम, समझ लो मेरा वजन 80 किलो है तो मेरे को करीब 100 से 120 ग्राम जितना प्रोटीन लेना है। मेरे हाथ में आ जाए इतने चने गुड़ के साथ खा लो, स्प्राउट्स खा लो, आपका काम बन जाएगा। दूध, दही, छाछ, सब में प्रोटीन तो है पर कैल्शियम भी है। तो इन दिनों जो लोग डाइट कर रहे हैं, क्रैश डाइट कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, वो मेहरबानी करके मत करो। 2 किलो वजन कम नहीं होगा तो चलेगा, पर खाना कम कर दिया, इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। पानी का मैंने जो समझाया 3.5 से 4 लीटर, उसके साथ वो हमेशा कहा करते हैं इन दिनों कुछ मीठा हो जाए, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, वो कितना वाजिब है वो भी आप बता दीजिए साहब। सही बात है, आइसक्रीम या ठंडा कोल्ड ड्रिंक कुछ भी लेते हैं तो टेम्परेचर हमारा नाक गले का कम होने की वजह से वहां पड़े हुए बैक्टीरिया वायरस को एक तो वहां रुकने का मौका मिलता है, और दूसरा उसमें आई हुई शुगर, जहां पे गुड़ होता है वहां मक्खी आती है, जहां शुगर होता है वहां बैक्टीरिया वायरस फंगस रह जाती है। तो उसका ध्यान रखते हुए अवॉइड करें तो अच्छा है। फिर भी अगर हनुमान जी गदा लेके आ गए और बोला कि आदित्य जी आप आज आइसक्रीम नहीं खाओगे तो सर फोड़ दूंगा, तो खा लेना है, लेकिन बाद में गर्म पानी से कुल्ला गरारे करके आपने गले को साफ भी कर देना है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ट्राई टू अवॉइड एज मच एज वी कैन। नाउ कमिंग बैक अगेन, अगर मुझे इतने सिम्टम्स हैं कि मुझे शायद हॉस्पिटल जाना पड़े, तो वो सिम्टम्स कौन से हैं? पहले तो घर में है तो अभी तो सबको पता है कि हम ऑक्सीजन नापना और धड़कन देखना चालू कर देते हैं। जिसको भी कोविड का रिपोर्ट आता है उसके घर पे ये ऑक्सीमीटर आ जाता है। पिछले सदियों में जितने ऑक्सीमीटर नहीं बिके हैं उतने अभी पिछले 6 महीने में बिकने शुरू हो गए हैं। और इस ऑक्सीमीटर में 2 चीजें मिलती हैं, एक है धड़कन और दूसरा ऑक्सीजन का जो SpO2 कॉन्सेंट्रेशन। वो क्या है बताऊं? मेरे फेफड़े से ऑक्सीजन लेके जो रक्त कण हार्ट उसको घुमा के उंगली तक भेजता है। हमारी उंगली है that is the farthest point in our body from your heart and lungs। तो इस farthest point तक जो खून आता है, रक्त कण आता है, उसमें से कितने प्रतिशत के पास ऑक्सीजन है ये बताता है। अगर मेरे यहां पे आने वाले 95% से ज्यादा रेड सेल के पास ऑक्सीजन है, उसका मतलब कि फेफड़े से ऑक्सीजन सही आ रहा है और रेड सेल उसको लेके यहां तक पहुंच पाता है, तब तक ऑक्सीजन छूट नहीं जाता है। वो तो एक चेयर है या तो एक थाली है जिसमें हम डाल के ऑक्सीजन डाल के लेके आते हैं। यहां तक आते आते हर एक अंग को पहुंचाते तक यहां तक आता है। तो अगर ऑक्सीजन फेफड़े से कम आ रहा है तो भी यहाँ पे डाउन होगा, अगर वो ऑक्सीजन छूट जाता है बीच में तो भी डाउन हो जाएगा। तो इसको नापने के लिए ऑक्सीमीटर होता है। दूसरा उसमें आती है हार्ट की धड़कन। तो धड़कन अगर 100 से कम है
और ऑक्सीजन का लेवल 95 से ऊपर है तो उसको हम नॉर्मल मान के चलते हैं। कैवियट ये है, अगर किसी को दमे की बीमारी है, पुराना फेफड़े का रोग जिसको कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं, किसी को फेफड़े की सर्जरी हुई है, या तो और कोई सी ऐसी बीमारी है जिसमें कि ऑक्सीजन नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है, तो उन केसेस में हम 90 या तो 85 तक भी उसको नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, बट दैट इज अ रेयरिटी, नॉट फॉर ऑल। हम जब ये नापते हैं तब क्या करते हैं, बैठे बैठे नाप लिए। लेकिन अगर कोविड मेरे शरीर में आ गया, मैं घर पे हूं, तो मैं जब 6 मिनट चलूंगा, 6 मिनट चलने के बाद 3 मिनट बैठूंगा, और वो बैठने के बाद अगर मैं ऑक्सीजन नापता हूं, धड़कन नापता हूं, तब वो 95 से ऊपर और 100 से नीचे धड़कन है, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। 2 दिन के बाद आने वाले जो कोई भी साइक्लोन है, आपके वहां पे तो ज्यादा होता है, उसकी जो आगाज है वो बदरिया देख के या तो क्लाउड्स देख के हमें पता चल जाता है कि ये 2 दिन के बाद आने वाला है। अभी तो गूगल पे सब आ जाता है, साइक्लोन वार्निंग ये सब, लेकिन ये सब क्लिनिकल वार्निंग्स है। तो जब भी मैं चलता हूं, चलने में मेरा 6 मिनट में जो डिस्टेंस है वो दिन में 2 बार नाप लूं। जब भी मैं ये ऑक्सीजन नापता हूं, चलने के बाद बैठने के बाद वो नाप लूं। और तीसरा है ब्रेथ होल्डिंग। अगर मैं गहरी सांस लेके रोक लेता हूं, या तो एक सांस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लंबा कितना बोल सकता हूं वो गिनती करूं, या तो मैं कितनी सेकंड ब्रेथ होल्ड कर सकता हूं। लेडीज या बच्चों के लिए, या तो एल्डरली जो है उनके लिए 20 या 25 सेकंड इज ओके। मिडिल एजेड है या तो जेंट्स है जिनको कि ज्यादा ओबेसिटी नहीं है, नॉर्मल बॉडी वेट वाले हैं, उनके लिए 30 या 35 सेकंड इज टू बी कंसिडर्ड अदरवाइज ओके। कई लोग बहुत बड़ी, जिनके वजन ज्यादा है, दुगना 1.5 गुना है, तो उनके लिए 20 सेकंड भी इट इज टू बी कैलकुलेटेड अदरवाइज नॉर्मल, बट दे आर एट वेरी हाई रिस्क, क्योंकि उनके पास सेफ्टी रिजर्व नहीं है। उनकी ऑलरेडी सिस्टम, हार्ट की सिस्टम, किडनी की सिस्टम, लंग्स की सिस्टम वेट की वजह से ओवरलोडेड है। तो उनको खास ध्यान रखना है। अगर उनके केस में अगर कोविड आ गया है, डायग्नोस हो चुका है, तो दे शुड बी विजिलेंट ऑल्सो, एंड दे कैन बी प्रोवाइडेड सम एक्स्ट्रा मेडिसिन जो कि उनको ये झेलने की ताकत दे दे। हमने ये नाप लिया। अगर नापते नापते, हाँ, तीसरी बात है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर भी दिन में 2 बार नापना है। ये हार्ट अटैक नहीं है हर 2-2 घंटे पे जिसकी इंटेंस मॉनिटरिंग करनी है। 2 घंटे पे टेम्परेचर नाप लिया, ऑक्सीजन नाप लिया, सब उसके ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाता है, जिसको कहते हैं ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि उसमें देखते देखते इतने अंदर डूब जाते हैं कि उनको उसके सिवा कुछ दिखता नहीं है। ऐसा नहीं करना है। दिन में 2 बार टेम्परेचर नापेंगे, और मुख में नापा है तो 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो इट इज टू बी टेकन एज सिग्निफिकेंट बॉडी टेम्परेचर। अगर यहाँ पे आर्मपिट में नापा है तो 99.5 तक इट इज टू बी टेकन एज अदरवाइज नॉर्मल। दैट इज नॉट टू बी टेकन एज अ सीरियस राइज इन टेम्परेचर। कहीं पे भी 101 के ऊपर गया और वो सतत कंटिन्यूअस 101 के ऊपर रहा, मेटासिन ले ली, पैरासिटामोल ले लिया, पानी ले लिया, फिर भी चालू रहा, तो दैट इज द वार्निंग साइन। कांस्टेंट टेम्परेचर बियॉन्ड 101। अगर सांस लेने की, अगर हमारी सिस्टम जो है वो 30 से ज्यादा टाइम सांस लेना पड़ता है, धड़कन 100 से ऊपर हो जाती है, देन ऑल्सो इट्स अ वार्निंग साइन। अगर खांसी शुरू हो जाती है जो कि रुकती नहीं है, खांसी रुकने की दवाई से भी रुकती नहीं है, दैट इज ऑल्सो ए वार्निंग साइन। अगर मुझे उठ के बाजू वाले रूम के बाद जाके वापिस आना है और उसमें मेरी हांफनी शुरू हो जाती है, दैट इज ऑल्सो ए वार्निंग साइन। अगर मुझे बहुत सारा पसीना, चक्कर, घबराहट होने लगी है, वो की कांस्टेंट रहती है, दैट इज ऑल्सो ए वार्निंग साइन। इसके साथ अगर मेरा सैचुरेशन 90 से कांस्टेंट नीचे, हार्ट रेट 100 से ऊपर रहता है, दैट इज ऑल्सो ए वार्निंग साइन। सो अनटिल एंड अनलेस दिस साइंस आर देयर, हर एक कोरोना दर्दी को हॉस्पिटल में जाना नहीं है। हर एक कोरोना दर्दी मरने वाला नहीं है। हर एक यहाँ मेरे को वो बताना है उनको रोक के भी कि 2020 में विश्व आरोग्य संस्था ने पहले ही बता दिया था कि 2020 के अंदर सबसे ज्यादा मृत्यु डिप्रेशन से होने वाली है। अभी हम सुशांत सिंह का भी केस सुन रहे थे। सुसाइड, सितंबर में एंटी सुसाइड प्रिवेंशन डे भी गया। पूरी दुनिया में लाखों लोग सुसाइड से मर जाते हैं हर साल। हम भी कम से कम 2 लाख जितने लोग यहाँ भी इंडिया में सुसाइड कर लेते हैं। तो हर रोज का नंबर सोचो आप। हेलमेट पहनो, वो बोलने के बाद हेलमेट नहीं पहनने की वजह से रोजाना हजारों लोग मर जाते हैं। ये सभी डेथ के नंबर कोरोना के डेथ से तो बहुत ज्यादा है, और वो सब प्रिवेंटेबल है। अगर हम कॉशियस रहे तो वी कैन रिड्यूस दोज नंबर। कोरोना में मास्क ही अभी तो वैक्सीन है। तो ध्यान ये रखना है कि हम जितनी चिंता कोरोना को लेके कर रहे हैं ना, वो चिंता हमारी इम्यूनिटी कम कर रही है। और अभी मिस्टर अंकुर कुमार पूछ रहे हैं कि
पल्स ऑक्सीमीटर में डॉक्टर साहब वो पीआई लिख के क्या आता है? हार्ट रेट और SpO2 के साथ वही पीआई आता है। उसको पल्स इंडेक्स कहते हैं। जब मेरा हृदय धड़कता है जोर से, अगर अच्छी तरह से प्रेशर डिफरेंस से वो आता है तो पल्स इंडेक्स ज्यादा होती है। ये इंडेक्स जो है वो ये बताती है कि कितनी मात्रा में खून का हर एक धड़कन के साथ बहाव आ रहा है। कईयों को ब्लड प्रेशर बहुत लो होने से वो इंडेक्स कम होती है, उसकी दोनों की ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है। और उसके पहले का क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू डेवलप इम्यून सिस्टम। मेरी इम्यून सिस्टम तुरंत चार्ज अप हो जाती है 8 से 12 घंटे के अंदर। लोकल इम्यूनिटी जो है वो चार्ज अप होके कॉमन इम्यून मैकेनिज्म चालू हो जाती है जिसको IgA कहा जाता है, लोकल थ्रोट और गले का, वो तो तुरंत इम्यून सिस्टम को आगे बढ़ा देता है। बाद में जो है सिग्नल है वो जाता है हमारे सिस्टम में और अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस इम्यून रिस्पॉन्सेस वो इम्यून शुरू हो जाती है। जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है उनको बहुत देर लगती है, जिनको लंबे अरसे के लिए स्टीरॉइड दिया गया है, जिनको कि कैंसर हुआ है, जिनको कि इम्यून सप्रेसेंट एजेंट्स दिए गए हैं, कईयों को जैसे जोड़ों की बीमारी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, उनको कुछ दवाइयां दी जाती है, तो उनमें ये कम होती है, उसका अपटेक चार्जअप होना देर लगता है। उन लोगों का ब्लड में CRP रिपोर्ट भी ज्यादा आएगा। अगर आप CBC CRP जैसे रिपोर्ट करा रहे हो और CRP ज्यादा आ गया तो बाद में बोलते हैं कोई हार्ट अटैक नहीं है, भागा दौड़ी करके पैनिक नहीं होना है। CRP ज्यादा होने की भी बहुत सारी वजह है। हाँ, जोड़ों का दर्द हो गया, अगर मेरे कहीं पे सूजन आ गई तो भी CRP ज्यादा हो सकता है। अगर किसी ने मुझे जोर से 1-2 चाटा मार दिया ना तो भी थोड़ा CRP बढ़ सकता है। So CRP is a very non-specific inflammatory marker, but it is must to have a CRP and LDH। दूसरा जो है, क्योंकि हम ब्लड पे आ गए हैं अभी तो वी आर जंपिंग ऑन टू इट, LDH जो है वो वायु कोशिकाओं पर कितना हमला हुआ है वो उसका नाप है। तीसरा लोग कराते हैं IL-6 और फेरिटिन। फेरिटिन है वो आयन कितना हमारी बॉडी का एक्टिवेट हो रहा है, और इस वायरस में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि पूरे शरीर से आयरन को खींच के वो फेफड़े में ला देता है और वहां पे वो पल्मोनरी आयन होम्योस्टेसिस माने फेफड़े में रहे आयन का बैलेंस जो है वो बिगाड़ देता है, और उस आयन का उपयोग करके वो, जैसे तोप के गोले भी आयन के ही बनते हैं, बंदूक की गोलियां भी आयन की ही बनती है, उसी तरह इस आयन का उपयोग करके वो फेफड़े में नुकसान करता है। तो इसकी वजह से फेरिटिन। I must thank you all कि अभी भी आप 99 people are there on the meeting। हम करीबन 50-55 मिनट बात कर चुके हैं 1 घंटे के टॉक में। पिछले अभी 10-1 मिनट बात कर रहे हैं, तब आप क्वेश्चंस जो भेज रहे हो उनको हम एक पे ऊपर एक ले लेंगे एंड लास्टली वी विल कंक्लूड। दिन में कितनी बार आयुर्वेदिक काढ़ा पीना है, ये प्रश्न आप हम दोनों एलोपैथी डॉक्टर को पूछ रहे हो, फिर भी हम जवाब जरूर बट वी आर ऑलवेज रिस्पेक्टिंग द साइंस। हर एक साइंस का एक लिमिटेशन है और हर एक साइंस की एक वर्च्यू है। तो काढ़ा पीने से, वार्म लिक्विड आने से नाक कान गला एक तो साफ होता है, और काढ़े में आए हुए हर एक जो वनस्पति है उसके जो वर्च्यूज हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम उत्तेजित रहती है। तो उस उत्तेजित इम्यून सिस्टम की वजह से जब भी ऐसा हमला होता है हम तुरंत चार्ज अप हो जाते हैं सामने काउंटर अटैक करने के लिए। लेकिन काढ़े पी के कई लोगों को पाइल्स की तकलीफ भी बिगड़ गई है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल आगे से नीचे पीछे वाले मुंह तक भी परेशानी दे सकता है। तो हमारे पेट में वो जितना टिक सके, जितना हमें सूट हो जाए उसकी तुलना में जैसे लेना चाहिए। गुजराती में कहूं तो भावे ते सदे तेटलू ने लई शकाय ने पचे तेटलू खावा। The other question is which pranayam helping to prevent? Again, this is a question not for us, but yes, he being a pulmonologist and I am into meditation practices, all of us, pranayam can surely help with 2 reasons: of focus and concentration that will release some sort of a chemical that also makes you understand more of the faith, and the breathing pattern in the rhythm also is always good for that. इससे ज्यादा लंबा जवाब देने का अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज आपके हर एक प्रश्न पे हम 15-20 मिनट बात कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक काढ़ा आप जितना ले सको करो, प्राणायाम जरूर चालू रखो, चलना चालू रखो। आपको जो भी एक्टिविटी अच्छी लगती है, जिसमें से आप जॉय मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, दे विल रिलीज हैप्पीनेस केमिकल। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं नहीं करेंगे ना, उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एंडोर्फिन, सीरोटोनिन, ये सब केमिकल आपको एकदम चुस्त रखेंगे। स्लीपिंग हैबिट का इम्यून सिस्टम पे कोई असर है कि नहीं, और है तो क्या है, दैट इज द अदर क्वेश्चन। सो स्लीपिंग पैटर्न, कितना सोना है, कब सोना है। एक तो जब हम सोते हैं ना, तो यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर है उसमें जो CPU है वो CPU को कूलिंग डाउन टाइम मिलता है।
जैसे हम अनवांटेड फाइल्स डिलीट कर देते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को भरने नहीं देते हैं, यहाँ पे भी बड़ी हार्ड डिस्क है और उसकी जो रैम जो है वो तो बहुत फास्ट है, लेकिन उसको कूलिंग डाउन टाइम मिलता है। और जब हम सोते हैं तब क्योंकि हम ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं, हम कोई क्रिया उच्चालन नहीं करते, उसकी वजह से हमारा कचरा उत्पादन कम होता है, लेकिन पूरे दिन में जो हमने बनाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो उच्छ्वास के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो अगर मेरा बॉडी वेट रूटीन है, मेरे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए। लेकिन जिनका वजन दुगना है, 1.5 गुना है, उनको ज्यादा समय तक सोना पड़ता है, क्योंकि सोने की वजह से उनके कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जाएगा। अगर पूर्ति स्लीप नहीं मिलती है तो डे टाइम में हमें नींद आ जाती है, गाड़ी चला के कईयों को नींद आती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं। तो उन चीजों की वजह से इनकी परेशानी बढ़ सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इट वुड बी बेटर कि हमें जितनी जरूरत है उतनी स्लीप, यस। और अगर पूर्ति स्लीप नहीं है तो इम्यून फंक्शन डाउन होता है, थकान ज्यादा होती है, थकान की वजह से कई सारे केमिकल्स बनते हैं, लैक्टेट बनते हैं, एसिड्स बनते हैं, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को भी डाउन कर सकता है। अगर क्योंकि हमें कोविड की भी बात साथ में चालू रखनी है, अगर मुझे कोई सिम्टम ऐसा हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, या तो अगर मेरा कोविड आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया, या तो कोविड रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, हर एक पेशेंट के लिए सीटी स्कैन कराना जरूरी नहीं है। अगर मुझे कफिंग है, अगर मुझे सिम्टम्स है और मेरा एक्सरे हो गया और एक्सरे में धब्बे दिखाई दे दिए, बहुत है। सीटी स्कैन डू नॉट एड एनी वैल्यू ऑन डायग्नोसिस, नीदर डज इट एड एनी वैल्यू ऑन प्रोग्नोस्टिकेशन। वो धब्बों की वजह से आपका कल कैसा होगा वो तय नहीं होने वाला है। तय कौन करेगा? आपका ऑक्सीजन वैल्यू, आपकी धड़कन, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपकी खुद की इम्यून सिस्टम। हर 2000 सीटी स्कैन में से एक बंदे को अगले 5 साल में कैंसरस छोटे बड़े चेंजेस आने की संभावनाएं हैं। अगर क्योंकि मैं एकदम एफ्लुएंट हूं, मेरा हर 2 दिन पे 3 दिन पे सीटी स्कैन किया जाएगा, 4-5 सीटी स्कैन कर दिए तो वो 400 में से एक वाले बंदे में मेरा नाम आ सकता है। सो डू नॉट रिमेन ट्रिगर हैप्पी ऑन गेटिंग सीटी स्कैन्स डन until and unless there is a valid reason। आप मुझे पूछ सकते हो कि मैंने ये टेस्ट करवाया तो क्यों करवाया, और मैंने ये टेस्ट करवाने की ना बोली तो मैंने क्यों ना बोली, राइट? That is very important, and have faith in your treating consultant. They are all educated enough, learned, and they are trained enough to take care of you। लेकिन हम क्या होता है कि हम हमारे आउट ऑफ अवर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड मुकालात की वजह से, मानसिक मुकालात क्या होती है? कोई मिलने आता है, उसको हम बोलते हैं मुलाकात। 10 मिनट के अंदर वो खुद के आइडिया अपने शेर में इतना थोप देता है, ला को पीछे दे लेगा, का को आगे ले जा, मुका और लात हो जाएगी, घूसा घूसी हो जाएगी, और हमारे मगज की जो विचार की एक कैपेसिटी है, बैलेंस जो है, उसको इनबैलेंस करके जाएगा। देन वी सडनली वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर कि ये किया जाए, वो किया जाए, मेरा तो अंत आ चुका है, अंत निकट है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना भी एकदम सयाना सुलझा हुआ बंदा है। अगर उसको आप रिस्पेक्टफुली उसको साथ डील करोगे तो आपको कुछ नहीं होना है। Somebody is asking, a Vodafone is a symptom of COVID or not? No. 100%. Remember, in these days we also have dengue, we also have chikungunya, and there is a lot of thing। अब हम 6 महीनों से ABCD में C पे लटक पड़े हैं, वहां से वो अटक गए ना, उससे आगे जाना है। Let us think about C for consistency, for maintaining immunity, C for being courageous to deal with any kind of infection, C for bringing out creativity in lockdown, and C कोरोना का ही है ऐसा मत मानो, बुखार चिकनगुनिया से भी आ सकता है। डॉक्टर साहब will tell you something about to be very cautious इन दिनों, कि मास्क से सिवा और कौन सी चीजों पे ध्यान देना है और बुखार क्यों आता है। जी, क्वेश्चन पूछ लिया तो सीधा उसी के ऊपर आ जाऊंगा। मास्क के सिवा हैंड वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 सेकंड्स हैंड वॉश विद सोप, दैट इज द बेस्ट वे। ये वायरस इतना फ्रेजाइल है, एनी सोप इज ओके। जो एडवर्टाइजमेंट करता है वो या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनी सोप इज ओके। 20 सेकंड्स में ये फ्रेजाइल वायरस सोप की वजह से उसका आउटर कवर है वो पिघल जाता है और वो मर जाता है। तो उसको, उसकी वजह से अगर 20 सेकंड मुझे हाथ धोना है तो कैसे करेंगे? छोटे बच्चे हैं तो उसको बोलो कि हैप्पी बर्थडे टू यू, वो पूरा जिंगल जाएगा, या तो जिंगल बेल जाएगा। अगर कोई गुजराती या तो कोई हमारे जो धार्मिक कोई भी है तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। इतनी स्पीड से बोलोगे ना 14 to 15 सेकंड्स लगेंगे। 2 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया 30 सेकंड हो जाएंगे। इसी बहाने उस चैंटिंग से भी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। नवकार मंत्र है, जय हनुमान है, जय राम है, जय सिया राम है, जो याद आए, हमारा जो कुछ भी है, आयाते बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज ए कंसिस्टेंसी। दिन में 4 या 5 बार आपका हाथ का वॉश होना जरूरी है। बाहर से गए तो पहले वॉश, पूरा स्नान करना भी उतना ही जरूरी है। जो कोई भी लेडीज होती हैं, जो कि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चे उनको हग करने आते हैं, तो हम लाइकली कहते हैं कि बाथरूम में मने जावा दे, साबुथी नाहवा दे, पछी तने मळू। लेट मी गो इन द बाथरूम, हैव बाथ एंड देन गो एंड हग एवरीबॉडी, डजंट मैटर। आप सबको मिल सकते हैं प्रोवाइडेड आपने खुद को डिसइंफेक्ट कर दिया है। वो हाइपोक्लोराइड वाला सॉल्यूशन हवा में उड़ाने से कुछ नहीं होना है, दीवारों को वॉश कराने से कुछ नहीं होना है। कोविड जो आता है वो हमारे कंधे, हमारे हाथों पे, हमारे मुख पे बैठ के ही आता है। उसको ध्यान रखने से हमारा कंटामिनेशन कम होगा। How much helpful yoga before and after corona affected? Before affected जो आप करते हो करो, पर एक बार अफेक्ट हो जाते हो तो योगा कितनी इंटेंसिटी में, कितनी फ्रीक्वेंसी में और कितने एक्सर्शन में होना है, नहीं होना है, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कोरोना होने के बाद पहले पल्मोनरी फंक्शन इवोल्यूशन होता है, जो कि हमें बताएगा कि हमारे फेफड़े को कितना मार पड़ा है। ये एक्सरे और सिटी स्कैन है, ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो कि गाड़ी की बॉडी ऊपर कितने डेंट है वो बताता है, धब्बे बताता है। अगर गाड़ी की बॉडी के ऊपर 100 डेंट है, लेकिन अगर इंजन अच्छा चल रहा है तो वो डेंट की गिनती करनी जरूरी नहीं है। हमारे जैसे अहमदाबाद, गुजरात, कहीं इंडिया में हर एक जगह जाओ, गाड़ी के ऊपर कोई ना कोई डेंट तो होता ही है। मर्सिडीज है या मारुति है, डेंट वाली मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इंजन अगर अच्छा है, अगर आपका श्वसन क्रिया अच्छी है, अगर आपको चलने घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप रूटीन डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्टिविटी करने की गुंजाइश कितनी है और कितनी कैपेसिटी है, वो आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने से कर सकते हो। इंडस्ट्रीज में भी पीएफटीज होते हैं, हमारे जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट भी करते हैं। पहले फिजिशियन नहीं करते, लेकिन पोस्ट कोविड में उन्होंने भी पीएफटी ले लिया है। पहले खाली वो ईसीजी और ट्रेडमिल करा करते थे, अभी पीएफटी उनके पास भी आ गया है। वो भी हमें टेस्ट करके बता पाएंगे कि इंजन कैसा चल रहा है या फिल्टर कितना काम कर रहा है, वहां कितनी छोटी बड़ी समस्या है, उसका क्या क्लियरिंग होगा। लेकिन यस, पोस्ट कोविड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रेथ होल्डिंग, कई एप्लीकेशंस भी है, जैसे स्विसी रविशंकर का जो 3SRB करके जो ऐप है, काफी सारी और भी लोग ग्रुप्स में करते हैं। योगा प्राणायाम किया जाए, वो अच्छी बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। So Mukesh bhai is asking ki out of the frame question, spirituality and chanting mantras, how much effect? It is not at all out of frame question, it is very much within the question कि जहां से पार्थिव ने शुरू किया था कि एक बार हम सांस लेते हैं तब 4 बार धड़कन बीट्स के रूप में हम महसूस करते हैं। हम रात को सो जाते हैं, घर पे ताला लगा देते हैं, गाड़ी को चाबी बंद कर लेते हैं, सब करते हैं ना। We take all the precautions. घर में हमारे ही बेड पे बाजू में सोने वाले इंसान को भी बोल देते हैं ना गुड नाइट। कभी हम सोते समय ऐसा बोल के सोते हैं, मैं सोता हूँ हृदय तू चालू रहना। We don't say that. तो ये अविरत चलाता कौन है? कोई तो पावर है जो चलाता है। So let us understand spirituality or divine power in simple manner that chanting mantra can really help you. ऐसा अभी साइंस या बेंगलोर के निमांस जो न्यूरोसाइंसिस और साइकोलॉजी दोनों को मिलाती है, ऐसी बहुत सारी संस्था ने बोल दिया है। कुछ नहीं तो वो आपका जो फेथ बढ़ाएगी ना, उससे भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बिकॉज वो फियर को हटाएगी। कोई भी नेगेटिव इमोशन जब आपके अंदर आता है तो वो आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। कोविड सर्वाइवर कैन गेट अफेक्टेड विद कोविड इन्फेक्शन। अगेन डॉक्टर साहब की एक बार हो गया, अभी तो मास्क मत पहनो। मरे થઈ ગયું दोस्त, આપણા ફરી नहीं થાય। अब तक जो भी रिसर्च है, 3 या 4 महीने तक जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनी हुई होती है वो रहती है, धीरे धीरे वो रिसीड होना शुरू हो जाती है। दूसरी बार भी इन्फेक्शन लग सकती है, हाँ, लेकिन दूसरी बार के इन्फेक्शन के टाइम पहली बार का चाटा पड़ चुका है, तो हमारी सिस्टम को पता है कि हाथ ऐसे आएगा तो ऐसे हिल जाना है, या तो उसको ऐसे डॉज करना है। दूसरी बार की इन्फेक्शन की इंटेंसिटी कम पाई जाती है, तो उसका मतलब ये है कि हमें केयर तो हमेशा करनी है। आदित्य सर ने क्वेश्चन पूछा है, सम टिप्स ऑन आफ्टर ऑफिस स्टेप्स टू बी टेकन। तो आफ्टर ऑफिस माने ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद की आप शायद पूछ रहे हैं। तो आफ्टर ऑफिस आवर्स में सबसे पहली बात तो जैसे भी बात हो रही है, पहले घर जाओ, घर जाके हमारे जो कपड़े हैं, हमारे बाहर रख दो। शूज तो घर के बाहर ही रहेंगे, बात सही है, लेकिन वो जो कपड़े हैं, अच्छा दूसरी अगली एक इंपॉर्टेंट बात,
सोप वाटर इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। ना ही उसको कोई ब्लीच के पानी में डालना है, ना ही कोई बड़ी महंगी केमिकल में डालना है, नहीं। सिंपल सोप वाटर में आपने अपने खुद के कपड़े डाल दिए, आपने खुद ने नहा लिया, उतने टाइम में भी अगर वो सोप वाटर में अंदर रहे, दैट मच ऑफ कॉन्टेक्ट इज सफिशिएंट इनफ टू किल दैट वायरस। इसके लिए उसको उबालते पानी में डालने की जरूरत नहीं है, उसको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक उसको डुबो के रखने की भी जरूरत नहीं है, और उसके बाद यू कैन डू सिंपल प्लेन वॉश, दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ। अगर ये इंपॉर्टेंट चीज वो है कि घर जाने के बाद तुरंत ही, आफ्टर हैविंग बाथ एंड ऑल, देन ओनली यू कैन डू रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। और अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमन है, या तो आपके माताजी पिताजी जो कि बहुत एल्डरली है, या तो कोई ऐसा जो कि हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं, हो सके तो अगर आपकी ऑफिस में कोई संक्रमण हुआ है, या तो आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से आते जाते रहते हैं, तो ट्राई टू कीप सम सेफ डिस्टेंस विथ देम अनटिल अनलेस कि आपको पता है कि आप प्राइवेट व्हीकल में ही आए हैं और आप एकदम सिक्योर्ड हैं। पिछले 12-24 घंटे में ना ही आपको गला पकड़ा है, ना कोई बॉडी एक हुआ है, ना कोई फीवर स्पाइक हुआ है, यू कैन डेफिनेटली मीट विद देम। उनको भी इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग इज ओके, बट फिजिकल डिस्टेंसिंग इज ओके, बट इमोशनल डिस्टेंसिंग should not be there. We have to get connected with them, we have to remain in touch with them, because they are the most vulnerable, जो elderly हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को कुछ नहीं करता ये वायरस को, बच्चे अच्छे नहीं लगते, उनको लेडीज भी कम अच्छी लगती है, उनको हट्टे कट्टे जो कि एकदम खुद को दारा सिंह समझते हैं ना, ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये मेल प्रीडोमिनेंट है, जितने भी पुरुषों को अफेक्ट होता है उसमें से 67% से ज्यादा सिम्टोमेटिक होते हैं, जितनी भी लेडीज को अफेक्ट करता है उसमें से सिर्फ 33 to 37% को ही इफेक्ट करता है। तो उनको अच्छे क्या लगते हैं, अगर हम उस ग्रुप में हैं तो हमें ध्यान रखना है, हमारे पास कोई ऐसा भी जादू मंत्र नहीं होना चाहिए कि मैंने ये कर लिया तो मुझे नहीं होगा। So दीपक पांडे, आपको भी प्रश्न का जवाब मिल गया कि there is a chance of repetition of corona as person already affected, क्योंकि ये कोरोना वायरस है और वायरस म्यूटेट होता रहता है, वो अपनी शक्ल और स्वभाव बदलता रहता है, कुछ नए नए रूप लेके आता है, तो फिर से भी आपको लग सकता है। थैंक यू सनातन फॉर सेइंग सैल्यूट टू यू फॉर ग्रेट वेबिनार, द सैल्यूट टू द पीपल हु हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू अस फॉर इंटरैक्टिंग और शेयरिंग व्हाट वी नो। एंड प्रश्न जो एक बाकी है अभिषेक पुरोहित का कि केसेस आर डिक्रीजिंग दिस डेज, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले they are increasing, and can we say we reached to herd immunity? Herd immunity is a fashionable statement these days to talk on whenever we meet in a small group or on telephone, but herd immunity is something very very different, जिसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। Yes, herd immunity माने, फिर से मैं वहीं पे आता हूँ कि अगर हमारी सोसाइटी में जहाँ पे रहते हैं कॉलोनी में 10, 12, 15 लोग ऐसे होते हैं, उसको पुलिस का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि छोटी मोटी चोरी चपाटी करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते आते रहते हैं, 2 बार चाटा खा चुके हैं, 2-4 लठियां खा चुके हैं, तो उसको कोई लाठी लेके आएगा तो डर नहीं लगेगा। और मेरे आपके जैसे हैं जो कि गॉड फियरिंग भी है, पुलिस फियरिंग भी है, लॉ फियरिंग भी है, तो वो खाकी कपड़े वाला आएगा तो भी हमारी बोलते हैं ना कि पैर ढीले हो जाएंगे, तो हाँ। तो हर्ड इम्यूनिटी माने वही है कि वो जो बंदा है जिसने मार खा के खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, और हम लोग जो है वो छोटा बड़ा चाटा खाएंगे, लेकिन वो रिपीटेटिव चाटे आएंगे, तब हमारी वो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो द रीजन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज दैट डू नॉट रिमेन कॉम्प्लेसेंट कि हमारी कम्युनिटी में इतने लोगों को हो गया माने अब वो हमको नहीं आएगा, नहीं। जब तक हमारा उससे एनकाउंटर नहीं होगा तब तक हमें वो इम्यूनिटी नहीं मिलने वाली है। या तो कंट्रोल एनकाउंटर जो कि वैक्सीन के बाद आएगा, या तो अनकंट्रोल्ड एनकाउंटर जो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन आएगा, उसमें सब बोलेंगे एक बार चलो ले लेते हैं, उसके बाद तो हमारा भला होगा, ऐसा नहीं है। So don't get into it. Now I'm coming on back onto one important aspect which is still left behind in completing the COVID information is about the treatment. अगर मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मुझे ये सब सिम्टम्स आ चुके, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मुझे दवाइयां दी जाती है। उसमें एक तो नाम बहुत फेमस हो चुका है अभी, एक तो एंटीवायरल जो कि घर पे रह के खाते हैं गोलियां, उसको फेविपिराविर, और अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो रेमडेसिविर के इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन ये है कि वायरस का 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होने को काटते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। लेकिन जो वायरस पहले उसकी खुद की एक्टिविटी की वजह से जो न्यूसेंस क्रिएट कर चुके, जो कि इन्फ्लेमेशन कर चुके, जो सूजन कर चुके, जो किडनी को खराब करती है, हृदय को खराब करती है, फेफड़ों को खराब करती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत जरूरत होती है, जिसमें कि N-एसिटाइलसिस्टीन है जो कि पानी में डाल के पीने वाला है,
ल्यूआर्जिनिन नामक एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि रिपेरेटिव कैपेसिटीज को बढ़ाता है। विटामिन ई जो कि हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं की सॉफ्टनेस बनाए रखता है। विटामिन डी जो कि हमारी ओवरऑल इम्यून सिस्टम फंक्शन को बूस्टअप देता है। विटामिन सी जो कि हीलिंग के लिए विटामिन है। ऐसी काफी सारी चीजें। बालों से भी बारीक खून की नलियां हैं, उसमें खून का बहाव बनाए रखने के लिए एक एंजाइम आता है नेटोकाइनेज, जो कि जापान रिसर्च है, विच इज अ टैबलेट जो कि इन बारीक नलियों में खून बहाव जमने नहीं देता है, जिससे कि कोविड की वजह से थ्रोम्बोसिस नहीं होता है। कोई भी जैसा है कि जो हाई रिस्क में है, अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उनको खून पतले करने के भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, खून पतला रखने की गोलियां भी दी जाती है उनको। रेमडेसिविर, फेविपिराविर के ऊपर भी, जिसको कि हम टॉसिलिजुमैब कहते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का जो कहते हैं ना कि अम्ब्रेला है, छाता है। अगर इंटरल्यूकिन का बारिश हो गया, जिसको स्टॉर्म कहते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म, तो वो टॉसिलिजुमैब का छाता दिया जाता है। लेकिन ये सब गोल्डन बुलेट्स नहीं है। इट हैज टू बी यूज्ड एट द राइट टाइम विद द राइट अप्रोच। स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं, लेकिन ये सब दुधारी तलवारें हैं। स्टीरॉइड मेल हेल्प भी करता है, वो इन्फेक्शन भी बढ़ाता है। टॉसिलिजुमैब हेल्प भी करता है, अगर मेरे शरीर में ट्यूबरकुलोसिस है तो वो डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस फ्लेयर अप भी करता है। फंगस की इन्फेक्शन की 7-10 दिन के बाद देता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं सब दवाइयां सब ले लूं, ऐसा नहीं होता है। Jaisuk Goyal asking sunlight is the best medicine for COVID-19, yes or no? No, that has proven that हमारे वहां तो बहुत गर्मी है, हम 32 से लेके 36 से लेके 42 पहुंच गए। Sunlight is not the golden vaccine. Vitamin D जरूर दे सकते हैं। Yes. और एंड इन दैट केस अगर ऑक्सीजनेशन कम है तो हमने नाक की नली से ऑक्सीजन दिया जाता है, बाद में मास्क लगाया जाता है, बाद में हाई फ्लो नेजल कैन्यूला लगाई जाती है, बाद में प्रेशर सपोर्ट दिया जाता है। ये सब ऐसे रास्ते हैं कि जो कि जमे हुए फेफड़े की कोशिका के बाकी बचे हुए कोश है, उसमें से ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिला जाए। बात आती है वेंटिलेटर की। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है। भगवान करे मेरा पैर टूट गया और इतनी इंजरी हुई कि मैं खुद चल फिर नहीं सकता हूं, तो मुझे व्हीलचेयर में लिया जाएगा। व्हीलचेयर वुड बिकम माय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये वेंटिलेटर वही है, टूटे हुए फेफड़ों की व्हीलचेयर है। जब तक कि फेफड़े खुद रिकवर नहीं हो जाते हैं, तब तक मुझे एक डिवाइस लगाया जाता है कि जो कि प्रेशर से ऑक्सीजन नीचे अंदर देता है, बाहर आने के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है। ऐसे फेफड़े जो कि रिकवर हो सकते हैं, जब तक रिकवर नहीं होता है तब तक वेंटिलेटर दिया जाता है। लेकिन हमारी 70-80 के दशक में जो होता था कि वेंटिलेटर पे लगा दिया माने गया, वो अभी भी अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए हम जब भी किसी को वेंटिलेटर लगाने की बात होती है, हम डर जाते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं करना है, उससे अच्छा तो हम घर ले जाते हैं। डोंट डू दैट। इफ यू आर इन अ गुड सेटअप विद गुड डॉक्टर्स हु आर एक्सप्लेनिंग यू कि ये जरूरत है, तो वो करना है। लिफ्ट जो होती है उसमें हम ऊपर नीचे जाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, सब मशीन करता है। वेंटिलेटर ऐसा ही लिफ्ट के जैसा है। जब हम उसके बाद हमारी ताकत बढ़ जाती है, हम सीढ़ियां चलने शुरू करते हैं, फिर भी कमजोरी होती है, तो पीछे से धक्का दिया जाता है। वो धक्का माने प्रेशर सपोर्ट डिवाइस, जो कि मास्क के दिया जाता है। बाद में हम एकदम खुल के चल सकते हैं, जबकि विदाउट ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन है, डज कोविड-19 मेक अ परमानेंट डैमेज ऑन लंग? यस, इट इज मेकिंग परमानेंट डैमेजेस ऑन लंग। लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट डोजेज अगर अच्छी मात्रा में लिए हैं, नेबुलाइजर लिया है, गर्म पानी से बफारा लिया है, हम उल्टे सोए हैं, वायरस का क्लियरेंस अच्छी तरह से करा है, तो इट डज नॉट गिव दैट मेनी परमानेंट स्कार्स। स्टेम थेरेपी लेते रहो, हल्दी पीते रहो, आयोडीन आपको बचा लेगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी मात्रा का बहुत सारा मगजमारी है। एक्सेसिव यूज ऑफ सैनिटाइजर जो आप पूछ रहे हो, हार्मफुल है, तो हो सकता है दोनों तरीके से, इधर की स्किन को और बाकी अपने पॉकेट को। साबुन से ज्यादा कोई चीज की जरूरत नहीं है। हम दोनों डॉक्टर ने मिलके भी 6 महीने में 5 लीटर सैनिटाइजर शायद पर्सनली यूज नहीं किया हुआ है। Thank you for this. And Kapalbhati is useful in post or pre-COVID or not. None of us have been qualified on that to give any opinion on Kapalbhati. But वो आप उसी के निष्णात से पूछ लीजिएगा। Anything that is giving exertion to body, उससे कोविड की थोड़ी दुश्मनी है। तो कोई भी आसन आप कर लो, वो कंफर्टेबली कर सकते हो, बहुत अच्छा। अगर वो करते करते कहीं भी एग्जर्ट हो जाते हो, तो इट्स अलार्मिंग, टेक केयर। Yeah, we never wanted to give any analytical solution, but yes, we tried to give you, आपको जितना भी सिंपल बना के कहा जा सकता था उतना पारसी भाई ने बताया। We are already been overshooting the time, Aditya sir, 65 minutes, and question आते जाते हैं, 5-7 मिनट करेंगे जब वो क्लोजिंग रिमार्क देंगे। He was introducing me that I'm a gynecologist and I also deal with emotional health management, जो बारी बारी बीच में हम दोनों ने कहा। लास्ट में फिर से बताना चाहूंगी
कि अपनी सोसाइटी अपार्टमेंट अड़ोस पड़ोस में किसी को हो गया, भगवान न करे किसी की डेथ हो गई, तो मेहरबानी करके वही बातें अपने दिमाग में या बात में मत ले आया करो। जो भी हम सोचते हैं वो विचार एक अफर्मेशन बन जाता है जो हमारा हर एक कोश शरीर के अंदर सुन लेता है। जितनी अच्छी बातें सुनाओगे इतना अच्छा है। ब्रेकिंग न्यूज डालोगे तो वो ज्यादा आपकी कंफर्ट जोन को बुरा करेगा। चिंता आएगी, चिंता से नींद खराब होगी, नींद खराब हो गई, नींद पूरी नहीं हुई, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। हर कहीं से देखोगे तो इमोशन का भी इतना बड़ा रोल जरूर है। दवाई जो आपके डॉक्टर्स देते हैं ना, तो भाई पार्थिव भाई वाज एक्सप्लेनिंग दैट कि व्हील चेयर जैसी बात है। तो ये तीनों चीज समझ लेना है कि आपकी अंदर की इम्यूनिटी, सांप की परफेक्ट टाइमली दवाई, और तीसरा आजू बाजू की मगजमारी को सुनना बंद करना। That will bring you out and the I'm one more taking up this question question, of yes. yeah. कंजम्पशन ऑफ आयोडीन पहले कह दूं क्योंकि बारी बारी ये क्वेश्चन आ रहा है। आप जो भी मेडिकल जर्नल पढ़े हैं, प्लीज ट्राई टू सी व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दैट जर्नल, व्हाट इज द रेलेवेंस, राइट, एंड सैंपल साइज। एनेक्डोटल अभी क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसा मूड में है कि जो भी यूज किया जाए आप करो, उसका जो भी रिजल्ट है आप हमें दो, we'll try to put that in an analytical mode and then we'll use it. Had iodine been so useful, every hospital would have used it, every guideline would have included it. Since it is not been included, just take it, keep it calm. Yes, very good कि आपको ये जानने की सबकी अच्छा उत्कंठा है, इंतजारी है, but that is good. But try to gather the information from the sources which would be, जैसे छलनी के माफक होता है, जैसे फनल भी होती है, काफी सारी इंफॉर्मेशन में कुछ को ही जीरो डाउन करके आपने लेनी है। तो एज ऑफ नाउ आयोडीन की बूंदे डालने से कोरोना मर नहीं जाता है, क्योंकि आयोडीन की बूंदे गले में रहती है, वो फेफड़े के अंदर उतर गई बूंद को कुछ नहीं करता है। ओवर कॉन्सेंट्रेटेड आयोडीन की वजह से भी अंदर अल्सरेशन होता है। टिंचर आयोडीन किसी को लगाते हैं, उसको कभी जलन, वहां पे स्कार्स भी बन जाते हैं। सो ट्राई टू डू एंड यूज समथिंग व्हिच इज सूटेबल टू यू। रही बात स्टीम इनहेलेशन, यस, स्टीम इनहेलेशन इज वेरी गुड टूल। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द स्टिकीनेस। हमारी श्वसन नलियों में, कोशिकाओं में जो स्टिकी सिक्रीशंस होते हैं, उसको मेल्ट डाउन करने में स्टीम का अच्छा उपयोग है। It helps us to clear the airways, that is always good. 1 घंटे के अंदर हमने वो 2020 वाला मैच खेले, इतना आपको बता दिया है। शायद थोड़ा स्पीड में भी आ गया होगा, ऊपर से गया होगा, अंदर कितना रहेगा मालूम नहीं है। फिर भी both of us have been very very optimistic. So आपके चैट बॉक्स के अंदर मैंने फेसबुक पेजेस के भी लिंक डाल दिए हैं। जो आप वीडियो सेक्शन क्लिक करोगे तो हमारे हर 102 एपिसोड, जिसमें आपके हर एक प्रश्न पे शायद एक एपिसोड हो गया होगा, उसकी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएंगी, बिकॉज दिस वाज प्योरली अ सोशल सर्विस फ्रॉम आवर साइड। प्लाज्मा डोनेशन का एक क्वेश्चन है जो जवाब देना चाहेंगे, एंड थैंक यू फॉर ऑल दी विशेस एंड अप्रिसिएशन फॉर दिस वेबिनार। सो प्लाज्मा डोनेशन कितना काम का है, वो अगर एक मैजिक वॉन्ड है कि नहीं, वो भी बता दीजिएगा। प्लाज्मा डोनेशन फिर से वो बनी बनाई इम्यूनिटी है। जो लोग की शहर में बीच में रहते हैं ना, उनके घर पे चोरियां नहीं होती है, लेकिन शहर के नए एरिया में जो रहने जाते हैं वहां पे चोरी चपाटी होती है। तो हर एक लोग घर में या तो बंदूक रखता है या तो वो पहले गोफन, गुजराती में क्या है, गुलेल जैसा होता है, वो रखते हैं। लेकिन अगर फिर नया एरिया डेवलप हो चुका तो वो गुलेल का उसको खुद को उपयोग नहीं होता है, फिर दूसरे किसी को देता है जो नया आता है। सो हमारी इम्यूनिटी जो बनी बनाई है, हमारा जो एनकाउंटर है, उसमें कई लोगों ने वो इम्यूनिटी का एक तत्व जो बनाया है, उसको हम बना बनाया लेके, जो कि सिक है, जो कि खुद का इम्यूनिटी बना नहीं पा रहा है, उसकी जरूरत से कम है, उसको हम देते हैं। उससे फायदा ये होता है कि उसकी इम्यून सिस्टम में जरूरत ही सपोर्ट मिल जाएगा, उसको रिकवर होने का टाइम मिल जाएगा और उसकी सिस्टम बिगड़ती हुई अटक जाएगी। तो ये प्लाज्मा थेरापी इज प्रूवन टू बी इफेक्टिव। वंस अगेन, जैसे कहना, नॉट अ मैजिक वॉन्ड, हैज टू बी यूज्ड ऑन टाइम which is required to be given at the time frame which is to be taken. कौन दे सकता है? हर एक बंदा दे सकता है जो कि 65 साल के कम उम्र का है, 18 साल की ऊपर की उम्र का है। नल्लीपेरस वुमन कहा गया है, माने जिन्होंने कभी चाइल्ड बर्थ नहीं करा है, वो दे सकते हैं। वैसे और लोग जिनको की कोई और वायरल इंफेक्शंस नहीं है, जो कि एकदम अदरवाइज वेल मेंटेन्ड हेल्थ स्टेटस में है, वो दे सकते हैं। उसके लिए इंफॉर्मेशन हर एक शहर में ब्लड बैंक में है, रेड क्रॉस के पास है, हर एक शहर की सरकारी संस्थाओं में भी है। दे आर मेकिंग ए लिस्ट ऑफ इट। यू कैन वेरी वेल कॉल। 104 नंबर पे भी आपको उसकी माहिती मिल जाएगी, जो कि आपको हेल्प करेंगे। इट इज अ गुड डोनेशन, इट इज अ डोनेशन ऑफ लाइफ। क्या बात है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आदित्य जी, आपके लिए ओवर टू यू फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क। थैंक यू सर एंड मैडम, डॉक्टर दर्शना एंड डॉक्टर मेहता, आपकी दिस सिंपल भाषा में जो आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फिल्टर किया है हमारे लिए,
I think that is a very clean and a very good takeaway. Otherwise, हर घर में सबके पास चुस्के हैं सबके, and मतलब इतने सारे चीजें हो रही हैं, which I think some of them are even harmful. So I think this filters down many of those things to doing things simplistically. And सबसे important चीज जो मुझे लगी, which is a very important takeaway, is अगर हो जाए तो relax रहें, tension ना लें. I think that is a very important takeaway from this webinar. I would encourage all our friends who have joined the call, आप लोग please sir की WhatsApp, sir की Facebook links पे जाएं, register करें वहाँ पर, उनकी सारी videos देखें. Lot of the questions have been very simplistically answered, and I'm sure अगर आप वहाँ पर question पूछेंगे तो sir का जवाब भी आएगा. And thank you so much once again, sir, for your for giving us so much time, almost an hour and a half, and all of us are really appreciative. Thank you so much.